तो ऐसा पर्सनल नहीं लेना इसको, जेनरिक डिस्कशन है, आगे पता चलेगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे, प्रे करेंगे, एंड उसके बाद में जो हमारा नॉर्मल क्लास जैसा प्रोसीजर होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we'll be discussing from Bhagavad Gita chapter 2, text number 11 and 12, right? But what we'll do, we'll take 11 first because 11 is much more elaborate and it will take time, right? So I want this particular session to be, kind of an interactive one. More than a lecture, it should be like a discussion, right? So I'm wishing that everyone, or hoping that everyone participates at least, right? So we'll recite the shlokas, word to word meaning, translation and purport, which are all given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. So shloka is like this. Shri Bhagavan Uvacha असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाष्यसे गतासुन अगतासुमंश्च नान सोचन्ति पंडितः. Word to word meaning. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Ashocyan, not worthy of lamentation. Anvashochaha, you are lamenting. Tvam, you. Prajnavadan, learned talks. Cha, also. Bhashase, speaks. Gata, lost. Asun, life. Agata, not past. Asun, life. Cha, also. Na, never. Anusochanti, lament. Panditaha, the learned. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Purport. The Lord at once took the position of a teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows that what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man, as he did not happen to be a very learned man. He was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learning, and for him, there is no cause for lamentation, regardless the condition of the material body. So, anyone heard what I just said? Any one of you? किसी ने सुना मैंने क्या बोला? ध्यान से सबने सुना होगा, ध्यान से किसने सुना है? किसी ने? You have said we just not learn the material thing, we just have to learn the body and soul. Yes. Okay. And also the transcendental thing which we want to learn about it. Okay, something you heard at least. So here the Lord is actually saying
to Arjuna, in the previous chapter, what the discussion was that when this war at Kurukshetra was going to start, right? So Arjuna said to Krishna that take me in the middle of the battlefield. I want to see who all are there to fight me, right? So Krishna said, okay. When he took him, and then Arjuna saw what? That all his brothers, grandfathers, teachers, maternal brothers, everyone, cousins, everyone was present. All the relatives were present. And after seeing them, he became grief stricken. He said that, these are all my own kinsmen, right? So even if I have a victory by killing them, so what's the point in that kind of victory? So instead of, having a victory, what I'll do, I'll renounce everything and live a life as a renunciate. It's better for me to, beg and survive rather than killing them. So this was the argument which was given, okay, to Krishna. And there's like, I have explained it in brief, but this is actually very detailed stuff, right? So that's the whole point. That he was actually quoting from the Shastras, various, proofs he was presenting to the Lord. That's the whole point. And the Lord was simply, what he was doing, he was hearing and he was smiling. That's the only thing that the Lord was doing. He was not doing anything else. He was just looking at Arjuna and smiling. And later on, what Arjuna does is Arjuna asks, now you instruct me, what do you say on that? Because he accepted Krishna as his teacher, guru. Previously, why wasn't Krishna saying anything? Because there was Sakhya Rasa, some friendship rasa, which is going on, right? So we can't instruct a friend, in a serious matter. किसी भी सीरियस चीज में आप अपने दोस्त को कुछ बोलेंगे, वह मैं सोच रहा हूँ कि अपने पिताजी से अलग हो जाता है, भाइयों से अलग हो जाता हूँ, प्रॉपर्टी अलग कर लेता हूँ, ऐसा कोई बोलेगा तो आप उसमें कुछ अपनी राह देंगे. आजकल तो दे आर लाइक crooked friends. They are not friends, so-called friends. So they are the people who inspire. But real friend doesn't take part in such kind of things. He won't be instructed. So similarly, Krishna, before they were in one rasa, and after that, when he accepted Krishna as spiritual master and he glorified, and then Krishna started to say this. So this particular shloka, if you see, is the kind of embodied. Krishna starts with this, speaking to Arjuna. He says what? That you think you are learned man. First of all, why is he asking Krishna? Who's Krishna? Let's say if I ask something to one of you with whom I am, we have a very good relationship. But at the end of the day, what is the authority that whatever I will say that will be applicable to everyone, right? It's not the point, right? मैं आप लोगों को कुछ भी बोल दूंगा और वो अथॉरिटी जैसा आप ले लेंगे कि हाँ ये चलो बहुत पक्की चीज है, सही जगह से आ रही है, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसको ना. आप लोग जैसे बहुत सारे लोग करियर गाइडेंस लेते हैं लोगों से, राइट? तो आवश्यक होता है क्या, जो भी सामने वाला है वो जिस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स देगा तो आपका रुचि उसी में रहेगा. कोई बोलेगा नहीं आप एक काम करो, आप इंजीनियर बन जाओ, लेकिन आपको मैथ्स पसंद नहीं है, फिजिक्स पसंद नहीं है, आप बोलोगे यार मेरा तो कॉमर्स में ज्यादा मन है ना. सामने वाला आपको जानता नहीं अच्छे से तरीके से, या फिर उसकी एडवाइस कैसे लोगे आप? नहीं ले सकते. उसी प्रकार से आप देखेंगे फॉर अर्जुना, why did he accept Krishna's advice? Because Krishna was Bhagavan. Krishna is Bhagavan actually, not was. We are using past tense in context to when this pastime happened, right? Krishna is the supreme personality of Godhead. That's the whole point. And why we say so? Because there are six characteristics which the supreme personality of Godhead or Bhagavan has in full capacity, right? So what are the six? Anyone knows? वो छह ऐश्वर्य क्या है जो भगवान के बाद पूर्ण? वेल्थ, स्ट्रेंथ, हाँ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी. चलो तीन बचा हुआ है, तीन. knowledge, pronunciation. हाँ, हो गया पूरा. डन. अब 6 के 6 कंपाइल करो. ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, ज्ञानस्य,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आता, इंग्लिश में बोलिए। किस Full लोग? wealth, full renunciation, all beauty, all opulence. And Opulence is, these are opulences, right? So wealth, renunciation, beauty, strength, हाँ, fame, और एक और, ओके, ठीक है। तो हमने ये पूर्ण रूप में, right? This is Lord is having in full. So now, because Arjuna said कि Lord is supreme personality of Godhead. आप में से किसने भगवान के ये सारी चीजें देखी हैं प्रत्यक्ष रूप में? किसी ने देखा कि भगवान का ये सब कुछ ऐसा नहीं? So how can we see is through Shastra Chakshu, through the Shastras. That's why you see Arjuna in the later stage, what he says that he already believed that Krishna is supreme personality of Godhead, but then he asks Krishna to show the universal form, Virat Rupa. Why? Because in today's godless civilization, if we meet people, now book distribution is coming up. We are having book distribution marathon and everything going, right? So when we distribute book, you will meet many, varieties of people. We study, right, 84 lakh species of living entities. So even in human being, there are many various kinds of, species, bifurcation, division. So right now, what we are is different from what we will be meeting. It's not just that we'll just see, people with two hands, two legs, walking, in a civilized manner in the society. So that means all the humans are same. So this particular thing is divided on what basis? On the basis of consciousness. So these people, they do not believe in God. What do they say? They say that there is no God. कर्म ही पूजा है, बहुत फेमस है, आप लोगों को सुनने मिलेगा ये सारी चीजें. So just to establish for them, because such people have already faced something, in their, we can say, past. They believed in someone, but then they got cheated. Now they say that there is no God. Nothing like that, because we have been cheated. That's the whole point. So what Arjuna is trying to, explain over here, that let's say if someone is claiming to be God, right? Someone is claiming that, I am God, you worship me. So what we should ask him to show something which God possesses. Right? You show me something instead of just falsely advertising yourself as God. Right? So that is what Arjuna is teaching us. That's the main point that we get to learn from this, particular conversation. That's why he asked that you show the Virat Rupa. It was not necessary for him because he was already believing. It is a teaching for us, even if you are believing. There are many devotees who come over here, then they go out, and then they say, no, this particular process is bona fide and everything. So you must ask, that if this particular person is claiming to be God, then how much opulence does he has? Is the whole point. So there was this one, funny pastime, kind of. So Srila Prabhupada was actually sitting, and there was a person who came in, and he was claiming that he is God. He said that I am God. Right? Prabhupada kind of defeated him in each and every manner, but he was not accepting it. Right? He was telling, no, still, I'm God. So what happened was that after some time, he just got up and he wanted to go to toilet, small one. So Prabhupada said all his disciples, catch him, don't let him go. So they caught him, and he was practically crying. He said, please let me go, I can't tolerate it more. It's unbearable. It can come out any moment. Please let me go. Prabhupada said, first you accept that you are not God. Yes, I am not God anyway. Because God is controller of everything, right? And this particular person cannot even control his small one. So how can he say that, he is God? So even in life of Prabhupada, if you read Lilamrit, read Prabhupada's pastimes, you'll come to, see all this funny kind of encounters of Srila Prabhupada with various atheists. That's the whole point. Now the thing is that here, what is being taught, that a person who identifies with his body, right?
So first of all, what is body? How many types of body do we have? Anyone? Material and transcendental. Material and transcendental. Okay. So how do you bifurcate in that? Gross, subtle, and spiritual. Gross, subtle, and spiritual. Okay. One small kind of interruption in this, that whenever we are answering, we raise hands. Okay, because I'll be confused from where the answer is coming. Okay. So gross, subtle, and spiritual. No, practically there are only two forms. Right? Two. The one is what you are talking. Third one, that's the original swarupa. Okay? That we don't consider as body. So two things. There is gross and subtle, right? Anyone can say what is gross consist of? Yes. Bro. This body which had in the No, what is it made up of? What is the five concept? elements, water, air, This is made of 5 elements: water, air, land. earth. So Prabhuji said it's made of water, fire, air, earth, ether, right? Fine. Panchabhuta. Panchabhuta. Right? And the subtle body is made of, Sukshma Sarir is made of Real. uh, 3 elements. Real. Intelligence, false ego, mind. Okay, mind, intelligence, and false ego, right? So this is the identification. This particular body that we are actually identifying with is not real, first of all, right? It's just combination of 5 things, which is air, water, fire, earth, ether. And then, how can we say that this body is, even in this body, these two bodies, there's only one body which dies, right? Which is the gross body. The subtle body goes on. It goes on. That's how we get the next birth. Now it will be difficult for you all to understand that how does the subtle body go on, right? So, for example, when you are asleep, when we are sleeping, do you all see dreams? आप में से कोई ऐसा है जिसको सपने नहीं आते? कोई है ऐसा? ये ना ऐसा. So, in the dream, our subtle body leaves. It's active 24/7. You can consider the sleeping stage of a person as good as death. Right? He is dead, you can say, because his senses are not active. He's lying down. That's it. Now, even if we understand this, subtle body takes you from one place to another. Now, one may argue that, when the body dies, how does the subtle body carries the living entity from one body to another, and what are the basis of it? What is the criteria? So, a very good example is quoted of air, right? Air on, in its natural state is pure, right? But let's say if air passes from a rose garden, it will carry the fragrance of rose, right? Let's say if it is passing from a filthy place, it will carry the, what we can say, that smell of filth only, that disgusting smell. Similarly, this particular body, what we is meant for us to perform some activities which are mentioned in the scriptures. Now, with this body itself, we can get both the results, kind of, which are that from this body only we can degrade ourselves, and with this body itself we can liberate ourselves. Similarly, if we perform activities mentioned in the Shastra, we'll get a body which will be a cause of our liberation. But if we do something which is opposite, or by our own whims, based upon the urges of our senses, we'll be entangled, we'll be bounded. That's the whole point. That is what we have to understand. Now, what is the main thing here? That why do we identify? Because we have to identify ourselves in relationship with the Lord. Right? First of all, we are not knowing ourselves. That is why we are not knowing God. And who is God? He is the controller of everything. So that's the whole point. So in order to know God, what we have to do, we have to know ourselves first. That we are not this body, we are this soul. Soul, right? I'm not saying subtle body. Body consists of both the things, gross body and subtle body. We don't have to think that we are the subtle body. What we are? We are not this body, we are this soul. So this very statement, if one understands in a correct manner, it's like, you have made a good progress in your devotional service. That's the whole thing. But how many of us realize that? We all get up in the morning, take bath,
spend at least hour or half an hour in front of mirror, combing hair, if some devotees are putting tilak, no one is putting tilak. And then 5 to 10 minutes at least you spend in front of the mirror. And then again, we all have phones, selfie, photos, mobile photographs, editing, and everything. Because that is why we are doing that, because we are all bodily conscious. We think that this body is our own self. That is the basic kind of misconception in which we are living in which we are kind of leading the life today. Now, in Bhagavad Gita, if we see 8.6, what the Lord says is, we'll just read it out. This is very good shloka. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति यन्ते कलेवरं तं तं एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. So now one may ask that, we are kind of, let's say, how can I know that after leaving this body, which body I'll get, right? So this shloka is the answer. What does the Lord say in this? Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail, right? That is what the thing is. जब भी मृत्यु का समय होगा, यदि कोई व्यक्ति उस समय पे किसी भी चीज के बारे में सोच रहा है, उसको उसी प्रकार का शरीर मिलेगा, अगला शरीर उसका उसी प्रकार का, ये इसमें कहा गया. अब इसमें भी आप देखेंगे तो भगवान क्या बात है बता रहे हैं इसमें आगे कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छा है, someone is desiring to go to his forefathers, Pitra, so he'll attain that planet. If someone wants to go to the higher planetary system, he'll go there. And if someone wants to go to the planets of the demigods, Chandra Loka, Surya Loka, then he can go there also. That's the whole point. That's all on the, kind of based upon the desire, right? But what do the devotees desire? Anyone knows? Which planet do you all want to go? आप में से कौन किस ग्रह पे जाना चाहता है? अगर इच्छा है आप लोग, या एक ऑप्शन दिया कम से कम कि आपको जाना है. Yes, प्रभु. Vaikuntha. Why Vaikuntha? There's no cycle of birth and death. Just because of that, because there's no birth and death. To serve the Lord. To serve the Lord. Here also you are doing the same, no? Are you doing it? Are you serving the Lord? No? Good. At least you are honest. Anyone else? So you raised your hand. Where you want to go? Selling he wants to go to Goloka Vrindavan. Why? Supreme Lord. To see the supreme abode. I mean, we have Vrindavan, Bhaum Vrindavan, which is not different from, Goloka Vrindavan. So you can see it here also. What's the need to go there? Because you'll have to wait. We don't know when you will get old, how many years, and then when you leave the body. And while leaving the body, also if you're thinking about Goloka, so we are having here, take a ticket, 650 rupees from here to Dwarka, 10 rupees rickshaw, Krishna Balram Mandir. You have Govardhan, you have every temple there, right? So why there? Why we want to go there? Yes, Prabhuji. Maybe because we reach our true nature, which is Satchidananda. Acha. Prabhuji is telling that when we achieve our, true form, the soul, Satchidananda, so we go there, right? Anything else? प्रयास कीजिए, सोचिए आपको कहाँ कहाँ जाना है. बहुत सारे लोग आप में से सोशल मीडिया पे शेयर करते होंगे ना, चंद्रयान की लैंडिंग सक्सेसफुल हुई. किसी को प्लॉट लेना है वहां पे आगे चल के फ्यूचर में ना, कि चंद्रमा पे रहेंगे, वहां से देखेंगे चीजें. किसी की इच्छा नहीं है चंद्रमा पे जाने की? एलॉन मस्क ने बोल दिया हमारा स्पेसक्राफ्ट निकल रहा है, 4 वॉलंटियर्स चाहिए सेल्फ एक्सीलेंस से. तो कोई जाना चाहेगा? कोई वॉलंटियर नहीं करेगा. क्या बात कर रहे हैं? अगर वहां पे किसी ने प्राइज निकाल दिया ट्विटर पे कि ये कंपटीशन है, इसमें जो जीतेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एलॉन मस्क के जो भी उसका स्पेस एक्स का प्रोग्राम है उससे चंद्रमा में जाए, वहां सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. ओके.
तो ऐसे बहुत लोग हैं जो जाना चाहते हैं, बट गोलोक वृंदावन या वैकुंठ क्यों जाते हैं हम लोग? बिकॉज हमको थियोरेटिकली इतना पता है कि वी आर मेंट टू सर्व द लॉर्ड। थियोरेटिकली ये पता है कि आवर नेचुरल पोजिशन इज ऑफ दैट ऑफ अ सर्वेंट, एंड व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द सर्वेंट इज टू सर्व। हाउ शुड ही सर्व? विदाउट पर्सनल कंसिडरेशन, मुझको उससे क्या मिलेगा, राइट? सो there is no reason for us to go back home, back to Godhead. A devotee, what he says right now, this is Damodar month which is going on, right? हम लोग दीपदान कर रहे हैं टेम्पल के अंदर, तो हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं कि मुझे उस परम सिद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। क्या है कि गोलोक में वास करना, मेरा मात्र एक बोल सकते हैं ना, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपका जो ये बाल गोपाल का रूप है वो मेरे आंखों में सदैव बसा रहे और मैं ये लीला बारंबार देखूंगा। दिस इज व्हाट ही रिक्वेस्ट। वो सबसे बोलते हैं ना टॉप मोस्ट लेवल जो डिवोशनल लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं, भगवत धाम जाना, उसको भी त्याग रहे हैं। तो डिवोटी का भाव ये होता है। When Prabhupada ये लिखते हैं in one of his purports that a disciple's main duty is to follow the orders of the spiritual master. शिष्य का परम ध्येय क्या होना चाहिए? जो उनके गुरु ने आदेश दिया है उसको पालन करना। उसको ये नहीं सोचना, इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे कि प्रभुपाद मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो प्रभुपाद ने बोला यू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, आई टेक केयर ऑफ माइन। क्योंकि गुरु का बिजनेस क्या है? डिसाइपल को लेके जाना बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और डिसाइपल का बिजनेस क्या है? जो गुरु बोल रहे हैं उसको फॉलो करना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोई है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई करते समय यदि आप लोग सोचने लगे कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो घर वाले क्या बोलते हैं? बेटा हम तुम्हारा सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। जॉब मिले नहीं मिले, फीस आए नहीं आया, उसकी टेंशन नहीं, उसकी टेंशन हमारी है ना, जॉब की नहीं, फीस की। क्योंकि जॉब तो अल्टीमेटली कंपनीज के ऊपर है। आवश्यकता होगी तो 60% वालों को भी दे देंगे, वरना 90% वालों को भी निकाल देते हैं, राइट? दैट इज डुअलिटी। तो ये इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी वांट टू गो। दिस इज क्वेश्चन, यू नो, ये हमको प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन यदि कोई सामने से पूछ रहा है तो उस पर चिंतन करना चाहिए, आप लोग इस पर सोच सकते हैं, कंटेम्पलेट ऑन इट, राइट? So that is the main thing. So now what we are doing, you know, in this particular life, everyone wants to go to Goloka, everyone wants to go to Vaikuntha. So what we have to do is we have to purify ourselves. Purify ourselves. हमको अपने आप को उस पर्टिकुलर जगह जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप में से यदि ऑप्शन दिया जाए कि किसकी किसकी इच्छा है कि वो कहीं बाहर घूम के आए, किसी भी विदेश, कहीं भी, अमेरिका, लंदन, दुबई, गल्फ, कहीं भी, आधे से ज़्यादा लोग हाथ ऊपर करेंगे कि हाँ हमारी इच्छा है कि एटलीस्ट जाके आए। लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होता है ना, क्राइटेरिया होता है कि आपके पास पासपोर्ट रहना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए ना। तो सोचिए इस भौतिक जगत में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना सारा रूल्स रेगुलेशन है, तो इतना आसान होगा क्या यहाँ से गोलोक जाना? नहीं, तो उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। We have to do tapasya. So that is the most important thing that we have to, you know. Now, what is Krishna saying in this particular verse, if you look, is that one gets liberated. If one wants to get liberated, he also has to leave the subtle body. Subtle body कैसे बनी हुई है? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। अहंकार नहीं, मिथ्या अहंकार, ईगो नहीं, फॉल्स ईगो, राइट? क्योंकि लिए यदि इसके कब्जे में होगा ना, ये समझ लीजिए किस प्रकार से, पता है आपको, ये एक केज है ना, केज है, केज के अंदर सोल है आपका। ये केज 3 चीजों से बना हुआ है। 3 चीज क्या है? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। अब जो हम इस जन्म में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो वो इंप्रेशन जा रहा है इसके ऊपर, राइट? क्यों? क्योंकि लिए हम जो, यदि हम मटेरियल एक्टिविटी करेंगे, भौतिक कार्य करेंगे ना, हम लोग भौतिक कार्यकलापों में रहेंगे, तो उस प्रकार के ही इस पे क्या होगा? चिन्ह बनेंगे, इंप्रेशन बनेंगे। और ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये और स्ट्रांग होगा उससे। जिस मोड में भी आप रहेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो स्ट्रांग होगा। और फिर
उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो उसी लाइफ फॉर्म में जाएगा जिस लाइफ फॉर्म में सत्व गुण ज्यादा है, जिसमें रजोगुण ज्यादा है, जिसमें तमोगुण ज्यादा है, वो आत्मा को वहीं लेके जाएगा, उस जगह पे लेके जाएगा। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि यदि किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है ना, उसे मुक्ति प्राप्त करनी है, लिबरेशन, तो क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीज को भी छोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ करके निकलना पड़ेगा इसको, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सो इवन इसलिए हम लोग वो सारे बोलते हैं ना कार्य करते हैं, या हम लोग ना अकर्म करते हैं ना विकर्म करते हैं, विकर्म, कर्म और विकर्म, अकर्म करते हैं तो ना, जो कि शास्त्रों ने कहा है हम एज इट इज करते हैं, अपने मन से नहीं चलते। हम अपने मन से चलेंगे तो बंधन में बंधेंगे, दैट्स द होल पॉइंट। इसीलिए भगवान इसके अंदर बता रहे हैं कि हमको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। नाउ द पॉइंट इज दैट हमको फिर इस शरीर से आसक्त होने का आवश्यकता ही क्या है? अगर इसको छोड़ना ही है पीछे, आपको ग्रॉस बॉडी छोड़नी है, आपको सटल बॉडी छोड़नी है, तो आपको फिर इस शरीर से इतना आसक्ति क्यों है? इससे लेना देना ही नहीं है। अगर कुछ इसको छोड़ के ही जाना है तो फिर फायदा क्या है इसके बारे में इतना सोच करके ना? ये किसके लिए? अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन ने जितने भी तर्क रखे थे भगवान के सामने, वो सब शरीर के ऊपर ही स्थापित थे। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं ना, इस प्रकार से फ्यू, भांजे, ये सारी चीजें, मामा, ये सब लोग खड़े हैं वहां पे ना? या बोल सकते ब्राह्मण है इतने सारे, जैसे द्रोणाचार्य थे, उनके पुत्र अश्वत्थामा थे, फिर दुर्योधन उनका स्वयं के भाई थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, भीष्म पितामह उनके दादाजी थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये सब रिश्ते किस पे हैं? शरीर से ही संबंधित है ये सब के सब। तो भगवान यही चीज इसमें बता रहे हैं कि जब ये सारा शरीर आपको छोड़ना ही है, तो इसके साथ जुड़ी हुई चीजों से इतना आसक्त क्यों रहना, या इसके बारे में इतनी चिंता ही क्यों करना? वैलिड क्वेश्चन है। आप में से कोई, किसी को लगता नहीं अर्जुन तो सही कह रहे थे, दादाजी को कैसे मार सकते हैं, भाइयों को कैसे मार सकते हैं? अच्छी बात थोड़ी ना कि एक राज्य के लिए आप घर वालों को मार दो। आज भी यही देख रहे हैं ना हम लोग, भौतिक जगत में भी प्रॉपर्टी को लेकर के घर वालों को ही थोड़ा राम राम सत्य मतलब कर देते हैं। क्या करें? बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं भौतिक जगत में, वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा कभी। यदि वो लोग आप लोगों जैसे सेल्फ एक्सीलेंस के किसी क्लास में बैठे होते, कोई डिवोटी उनको बता रहा था, मे भी आगे चल के सद्बुद्धि आती, कुछ सही करते हैं ना। लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि लिए उनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन कितना आवश्यक है, शास्त्रों को समझना और शास्त्रों को जीवन में उतारना कितना आवश्यक है, हम लोग एक छोटे छोटे सेशन में सीख सकते हैं यदि सिंसियरली सुने तो, श्रवण करें यदि। लेकिन हम लोग सुनते कम है। हमारा श्रवण कैसा होता है? यहाँ से आता है, यहाँ से निकल जाता है। फ्रेश लिसनर्स, फ्रेश क्यों बोल रहे हैं? आज बैठे, अगले दिन फ्रेश होके आएंगे, पूरा कल का कुछ याद नहीं रहेगा, एकदम फ्रेश, नया पेज, पिछला पूरा पेज निकल जाता है, राइट? फ्रेश रहना है क्या आप में से किसी को? लेकिन फ्रेश तो बहुत लोग हैं, तो कैसे नहीं रह सकते हम लोग? पेन एंड पेपर, लोग नेक्स्ट टाइम से बुक लेके आएंगे, नोट करेंगे, तो आप लोग को याद रहेगा। लेक्चर में आने से पहले आप लोग एक बार देखेंगे, अच्छा लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारे कृष्णा प्रभु he transcribes the whole lecture, एटलीस्ट वो पढ़ के आइए, विल बी एबल टू रिलेट। हर जगह फ्रेश रहना अच्छी चीज नहीं होती, स्पेशली यहाँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, तो वो क्या कहता है? यस्यात्मा बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इच्छाधिया यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्ह्यचे जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। संस्कृत समझा नहीं होगा आप लोगों को, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। One who identifies himself as the inert body composed of mucus, bile and air, who assumes his wife and family are permanently his own, who thinks an earthen image of or the land of his birth is worshipable, or who sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identifies himself with, feels kinship with,
worships or even visits those who are wise in spiritual truth, such a person is no better than cows and ass, right? तो इसमें श्रील प्रभुपाद यदि आप देखेंगे सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि यस्यात्मा बुद्धि कुणपे, कुणपे का अर्थ क्या होता है? कुणपे मीन्स बैग, झोला बोलते हैं ना लोग, बैग। तो ये शरीर क्या है? शरीर को एक बैग से कंपेयर किया गया, राइट? बैग के अंदर क्या क्या है ये भी तो बात जानना पड़ेगा। बैग है कुछ है त्रिधातु के। तो आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप देखेंगे, आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारा शरीर 3 वस्तुओं से बना। कोई जानता है क्या क्या है वो 3 वस्तु? हाथ ऊपर करके बोलिए, स्पेकुलेट। हाँ, कफ, पित्त और वायु, ये 3 चीजों से बना, ऐसा आयुर्वेद कहता है ना। तो आप सोचिए इसमें क्या बता रहे हैं, यस आत्मा बुद्धि गुण पे त्रिधातु के है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये शरीर क्या है, शरीर ये जानना महत्वपूर्ण है कि शरीर 3 चीजों का बना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर इसमें क्या बताते हैं, स्वधीय कलत्राधीशु। तो इसमें आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि जैसे शरीर है ना, इस शरीर से संबंधित कोई व्यक्ति हो, यदि चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, किसी प्रकार के रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो, ये सारे लोग, और वो क्या सोचता है ये सब मेरे हैं ना। लेकिन शरीर किससे बना हुआ है? इन 3 चीजों से बना हुआ है, कफ, पित्त और वायु। तो कफ, पित्त, वायु आपका है क्या? शरीर जब आपका है नहीं। हमने जैसा पहले डिस्कस किया कि ग्रॉस बॉडी होता है, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो हम क्या है, दोनों ही शरीर नहीं है ना, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो आप सोचिए जो हमारे संबंध है, अगर हम ये शरीर है ही नहीं, तो इस शरीर से जो भी हमारे संबंध है, तो आपको लग रहा है वो आपके संबंध है? यदि आप अच्छे से थोड़ा जोर डाल के सोचे तो क्या वो संबंध आपके हुए? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं, माता है पिता है आवश्यक है? लग रहा है किसी को ऐसा? ये तो गलत बता रहे हैं प्रभु जी, ऐसे कैसे मान ले? बचपन से हम लोग बोलते आ रहे हैं माय नेम इज दिस, आई लिव हियर, माय मदर्स नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस ना। एड्रेस भी लिख रहे हैं, कहाँ जगह पे बिलोंग करते हैं, गांव का भी एड्रेस लिख रहे हैं, कहाँ पैदा हुए तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी है। आप बोल रहे हैं हम यहाँ के हैं ही नहीं ना, हमारा संबंध ही सही नहीं है। किसी को ऐसा कुछ प्रश्न आ रहा है या लाने का प्रयास कर रहे हैं, या मैं ला रहा हूँ अगर आप लोगों के दिमाग में, तो सोच रहे हैं आप लोग इसके बारे में? कोई ऐसा सोच रहा है? किस किस को सही नहीं लग रहा है थोड़ा, कि मतलब बचपन से कुछ अलग बताया गया, अभी कुछ अलग सुन रहा हूँ, आधे घंटे में पूरा हमारा 25 वर्ष का या 20 वर्ष का जो भी आप लोग की आयु है, पूरा सिस्टम हिला दिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं बाहर हम लोग? कोई है ऐसा? कोई नहीं आ रहा, सब लिबरेटेड है यहाँ, किसी को कोई इशू नहीं आ रहा। मुझको अभी तक नहीं विश्वास हो रहा, क्योंकि मैं तो हर बार कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो भी वो आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड पे तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, नाम होता है, ये चेहरा होता है। चेहरा अगर मैं किसी और का लगा दूंगा तो फिर मुझको जाने नहीं देंगे वो लोग, बोलेंगे गलत चीज़ है। ड्राइविंग लाइसेंस पे आप अपनी फोटो निकाल करके किसी और की लगा दो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कफ, पित्त, वायु नहीं हूँ, समझाओ ट्रैफिक पुलिस वाले को। तो आपको बोलेगा ठीक है, अब आपको लकड़े से समझाते हैं तो समझ आएगा शायद से अच्छे से। तो ये सारी चीजें सोचने वाली चीज है, जब तक हम लोग इसको सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है किस प्रकार से जीव फंसता है। आप जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति है ना जो शादीशुदा है, आप में से कोई है नहीं यहाँ पे, समझ लीजिए, आप बाहर जाते हैं किसी भी मार्केट में ना, मार्केट में माता जी की संख्या ज्यादा होती है, विमेन ज्यादा होती है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग जा रहे हैं वहां पे, लेकिन वो एक व्यक्ति उस स्त्री को देखता है जो उसकी क्या है, भार्या है, पत्नी है, वो बोलता है ये मेरी पत्नी है। हजारों औरतें हैं ना, बोलता है ये मेरी पत्नी है। अब इसने क्या जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया, शरीर का संबंध दूसरे शरीर से। अब उस शरीर से जो भी चीज उत्पत्ति हुई है, जिस भी चीज की, जैसे उस शरीर से वो बोल रहा है ये मेरे बच्चे हैं, उस शरीर से उसके जो माता पिता होंगे, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, तो ये सारे संबंध स्थापित करने लगता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये सारे संबंध सही हैं जो हमने अभी इतना डिस्कशन किया 45 मिनट, धीरे धीरे ग्रेजुअल लेवल पे? तो व्यक्ति इसी प्रकार से फंसता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, यस्य आत्मा बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधीय कलत्राधीशु भौम इज्जधिया। भौम इज्जधिया का अर्थ है कि जो व्यक्ति
सोचता है कि मैंने इस भूमि पे जन्म लिया है, ये भूमि मेरे लिए क्या है, पूजनीय है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें अपने मातृभूमि की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसे पूजना चाहिए। और इसी के लिए इतने सारे अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे हैं। वियतनाम वॉर हो गया, आपका वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 हो गया, अभी भी चल रहा है इजराइल हमास वॉर, राइट। इतना सारे वॉर्स, इजराइल फलस्तीन, इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं। किस लिए? एक जमीन के लिए। इतनी आसक्ति उससे कि वो लोग अपनी जान देने के लिए तैयार, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे कि हमारे शरीर में ऑलरेडी वो चीज है, 5 भूतों से बना हुआ है, एयर वाटर फायर अर्थ ईथर। कौन सा है वो क्या पता, क्या ही करना उससे। लेकिन इसे बोलते हैं ना कि व्यक्ति अंधकार में रहता है। वो सोचता नहीं ये क्या है, ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए लड़ना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास में सुभाष चंद्र बोस आए थे, रेवोल्यूशनरी आर्मी में था उस समय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर है, के गुरु हैं। तो उनके पास उन्होंने आके क्या बोला कि आप इतने युवाओं को रखे हुए हैं, आप इनको दीजिए, मैं अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी में डालूंगा इनको ना, और देश की आजादी के लिए लड़ाऊंगा। यहाँ पे बैठ करके साधु बने हुए हैं, क्या आवश्यकता है इसकी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसी का उदाहरण देते, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम ना, कि अभी आप इनको लेके भी जाते हैं, चलिए मान लिया आप लड़ाई कर रहे हैं, किस देश से, पाकिस्तान से कर रहे हैं, चीन से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, चीनी को मैं मारूंगा, पाकिस्तानी को मैं मारूंगा। दिमाग में पाकिस्तानी चल रहा है, मार दिया, उसको गोली लग रही है, मर रहा है, तो भी दिमाग में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी, चीन, कुछ ना कुछ चल रहा है। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव। अंत समय में जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो भी आप सोच रहे होंगे, आपको उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। फिर वो क्या बनेगा, वो पाकिस्तानी बनेगा। फिर वो बोलेगा हिंदू को मारूंगा, ये हिंदू मेरा दुख का कारण है, इसी को मारूंगा। इस प्रकार से फिर वो वापस हिंदू बनेगा, फिर पाकिस्तानी बनेगा, फिर क्या पता चीन का कहीं पैदा हो जाए, फिर कहीं रशिया में पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए ना। ऐसे कर करके भौतिक संसार में पड़ा ही रहेगा वो। ये सुन करके सुभाष चंद्र बोस बोले कि यदि मैंने अपना रेवोल्यूशनरी आर्मी का मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया होता, मैं भी आपका शिष्य बन जाता, लेकिन अब मैं इस चीज से पीछे नहीं हट सकता। तो शास्त्रों को मानना ये इंटेलिजेंट लोगों का, जो बुद्धिजीवी होते हैं, उनका स्वभाव होता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं ये तो गलत चीज है, तो नेशनैलिटी के खिलाफ जा रहे हैं प्रभु जी, वो बोल रहे हैं सारी चीजें से आइडेंटिफाई नहीं करना ना। तो जो हम बोल रहे हैं वो शास्त्रों का मत है, हमारा पर्सनल मत हम रखेंगे, वो रख नहीं सकते हम। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, क्यों नहीं रख सकते, वो आगे बताया जाएगा ना। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अभी यहाँ पे भी इसी श्लोक में यदि आप देखेंगे क्या दिया है आगे, यद तीर्थ बुद्धि शरीरे ना करे ही चीज। तो इसमें बता रहे हैं यदि कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में आता है, if someone goes to the place of pilgrimage, right, just simply for taking bath, he just thinks, I'm going to Prayagraj, I'll go to Sangam, take 3 dips, purify myself, and become sinless, then again I'll come back and start with a new account of sins, right? I'll start feeling it, I'll wipe the slate clean, then again I'll start scribing on it whatever nonsense I want to do. So this is not a very intelligent thing to do. That's the whole point. Why? Because the places of pilgrimage are actually not meant for only taking bath in sacred rivers, right? We have river Jordan in foreign, we have river Ganga, Yamuna, Saraswati, Sangam, Triveni, various Chandrabhaga river in our Maharashtra itself. There are many holy places there, but they are not just meant to go there and take bath. What they are meant for, they are meant for a person to go there, find a saintly person who is well versed in spiritual knowledge, and take knowledge from him and benefit. Now if a person just simply goes there and considers all these criteria and nonsense, simply takes bath and brings something, some prasad or something from there, ये वैष्णो देवी का देखो प्रसाद लेके आया हूँ मैं, ये चादर है वहाँ की, ये वहाँ का फेमस जो भी पेड़ा वड़ा बनता हो धाम का लेके आया हूँ, लेकिन वहां से वो नॉलेज नहीं लेके आ रहा, शिक्षा नहीं लेके आ रहा, आध्यात्मिक उसको कोई
बोलते हैं ना, उत्तर नहीं मिला जीवन का, उसकी कोई जिज्ञासा नहीं हुई वहां जाकर के, साधु संग नहीं किया उसने ना, भक्तों के प्रति उसका प्रेम नहीं बढ़ा, प्रीति नहीं भरी, ऊपर से बोल रहा अरे यार वहां के साधु तो लुटेरे हैं एकदम, पूरे पैसे छीन लेते हैं मेरे। क्यों? क्योंकि उनको साधु का अर्थ पता ही नहीं, जिसको भी उसने कपड़े में देख लिया, तिलक के साथ देख लिया, उसको साधु बोल दिया उसने ना, ये नहीं हुआ। तो उनका जीवन किस प्रकार से है इसमें बताया गया है, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः, तो वो गाय और गधे जैसे ही है, उससे अच्छे नहीं है क्या। और ये पूरा श्लोक एक ही है, इसमें कौन कौन आ गया आपके, कि जो व्यक्ति सोचता है कि शरीर से उत्पन्न हुई चीजें जो भी हैं वो मेरी है, उसके संबंध में जो भी चीजें वो मेरी है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा क्या आ गया, जो समझता है कि ये जो भूमि है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है वो पूजनीय है, यही मैं बिलोंग करता हूँ। और तीसरा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मात्र जाता है धाम में स्नान करने के लिए, यहाँ चलो अभी कुंभ मेला आ रहा है, जाएंगे स्नान करेंगे पूरे पाप धुल जाएंगे, महाकुंभ अर्ध कुंभ, उस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं ना। तो व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है तो वो क्या है, वो एक गाय या फिर एक गधे के बराबर है। क्यों ऐसा, गाय क्यों बोला गया, गाय को तो पूजनीय माना जाता है ना, पूजनीय मानते हैं। तो यदि आप देखेंगे ना गांव में, यदि कोई गाय है ना, तो गाय पता है आपको दूध कब देती है, किसी को पता है गाय दूध कब देती है, किसी के पास गांव का थोड़ा एक्सपीरियंस हो। बच्चा होने के बाद। हाँ बच्चा होने, कौन बोल रहा है आंसर, हाथ ऊपर करिए। हाँ बच्चा होने के बाद, उसमें भी कंडीशन होता है, बच्चा हो गया है चलो मान लिया, फिर 6 महीने के बाद स्टार्टिंग में जो दूध रहता है वो मतलब नहीं नहीं वो नहीं, कंटिन्यूअस कब देती है, कंटिन्यूअस तब देती है जब बच्चा उसके सामने हो। कभी भी आप देखेंगे पहले बछड़े को खोला जाता है ना, उसको सामने लाके बांधेंगे, बछड़ा भागने का प्रयास करता है, तो जो दूध निकालता है गाय का, वो दूध निकाल लेता है और छोड़ देता है, जितना उसको आवश्यकता उतना ले लेता है, फिर बछड़े को छोड़ता है और बछड़ा आके पीता है। क्यों? क्योंकि उसके वात्सल्य का क्या है, वो प्रदर्शन है। जब तक गाय अपने बछड़े को देखेगी नहीं तब तक उसके थन में दूध ही नहीं आएगा। माताओं का भी उसी प्रकार होता है, जब तक बच्चों को देखेंगी नहीं तब तक स्तन में दूध नहीं आता, यही मेन चीज है। तो जब ये बछड़ा समझ लीजिए किसी कारणवश शरीर छोड़ देता है ना, वो शरीर छोड़ देता तो गाय क्या करेगी, अब बछड़े को देखेगी नहीं तो दूध ही नहीं देगी वो। तो क्या करते हैं, यदि समझिए बछड़े ने शरीर छोड़ दिया है तो जो उसका चर्म होता है ना बाहर का, तो उसका चमड़ा निकालते हैं और उसके अंदर क्या भरते हैं, रुई भरते हैं, रुई या किसी प्रकार का घास डाल देंगे या कुछ, और सिलाई कर देते हैं और उसको सामने रख देंगे, बस उसके गाय के सामने रख देंगे। जब दूध निकालना होगा तो उसके सामने रख देंगे और गाय दूध देगी, तब बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से दूध देगी वो। और जब दूध निकाल करके हो जाता है, क्या करते हैं, उसके सामने जहां उसको बांधा हुआ है उसी के ऊपर एक शेड होता है ना, एक छपरे टाइप का होता है, क्या करेंगे उसको उठा करके उसके सामने ही रख देंगे वहां पे एज इट इज, फिर नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे उसको सामने रख देंगे। अब ये कोई घृणा करने वाली बात नहीं है कि किस प्रकार से कितने निर्दयी हैं कि वो बेचारे बछड़े का मरा हुआ छाल निकाल करके फिर उसको सामने रख करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गाय को। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसमें क्या पॉइंट है कि हम लोग क्यों गो और खर का एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि वो भी शरीर से इतनी आसक्त है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें जीवन है ही नहीं, उनकी आसक्ति शरीर से है। ये देखना है, ये समझना है। तो हमारी भी अवस्था ऐसी है, हम क्यों बंधन में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम क्या हैं, हम ये शरीर हैं, और जो भी शरीर से संबंधित है वो सब ही सत्य है, बाकी सब कुछ भगवान कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर उतना विश्वास नहीं है। विश्वास होगा, अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को होता है क्योंकि भगवान के बारे में पता नहीं फिर भी विश्वास कर रहे हैं, पता नहीं है फिर भी विश्वास किया जा रहा है। ये चीज है सबसे महत्वपूर्ण। अब आप देखेंगे इसके अंदर भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान को जानने की आवश्यकता क्या है, मतलब एक जीव है यदि उसको जानने की आवश्यकता क्या कि भगवान क्या है, तो इसमें आप देखेंगे भगवान जो भी चीज दे रहे हैं, अब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, भगवान जो भी चीज दे रहे हैं वो परफेक्ट है। जब तक हम लोग उसको एज इट इज रिपीट कर रहे हैं जैसा दिया गया है परंपरा में, तब तक जो भी आ रहा है परफेक्ट है।
आप बोल सकते हैं नहीं नहीं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ना, इन लोग क्या है, इन लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है, हमारा मानव जाति किस प्रकार से प्रगति की है, तो इसका मतलब वो लोग सही नहीं बोल रहे हैं ना? ऐसा भी किसी को प्रश्न आ सकता है। या हमें तो लग रहा हम पहले डार्विन थ्योरी पढ़ करके, मुझको तो डार्विन थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास है कि पहले हम लोग बंदर थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, फिर मनुष्य बने, और अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, मायावादी क्या बोलते हैं कि आप जब ये मंत्र पढ़ लेंगे, इसकी सिद्धि हो जाएगी तो आप भी भगवान बन जाएंगे ना? आप भी भगवान, मैं भी भगवान, सब कुछ, डिफरेंस ही नहीं है कुछ ना, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान का पोजीशन क्यों गलत है, मतलब किस प्रकार से सही है? क्योंकि भगवान अच्युत है, वो इन तीनों गुणों में आते नहीं, इससे परे हैं। और हम जीव हैं, हमारे अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं, 4 मेन प्रकार के डिफेक्ट्स। पहला क्या है, किसी को पता? पहला है कि हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, टू कमिट मिस्टेक्स, ये सबसे पहली चीज। सेकंड हमारा क्या आता है कि हम लोग बोलते हैं ना, इल्यूजन में रहते हैं। थर्ड, जोर से गलती कर देता है, साफ दिख गया, टेंडेंसी टू बी illusioned, टेंडेंसी टू बी illusioned, और कमिटिंग मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये 3 चीज है। लेकिन इन सब का प्राइमरी कारण क्या है पता है आप लोगों को? इम्परफेक्ट सेंसेस, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। अभी ऐसे आपको मैं बोलूं इस दीवार के पीछे क्या है, कुछ दिखेगा आपको? कुछ नहीं है बोलेंगे आप, दिख नहीं रहा तो कैसे कुछ होगा? इसके पीछे एक क्लास है जहाँ पे एक और क्लास चल रही है और लोग बैठे हुए हैं, तो इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों की वजह से क्या होता है, व्यक्ति इल्यूजन में पड़ता है। रात में रस्सी देख ली, रस्सी सांप लग रही है, कि रस्सी नहीं सांप है, और फिर उसमें क्या कर देता हूँ, मिस्टेक करता है। अब मिस्टेक कर दिया, सांप सांप चिल्ला दिया, घर वाले आ गए, कहाँ है सांप? फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, फिर चीट करेगा, नहीं नहीं मुझे, मैं सांप थोड़ी ना बोला, गलत सुने रहेंगे। तो ये 4 चीजें लाइन में जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी स्थिति क्या है, हम इम्परफेक्ट है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े MA BA PhD, ये सब लोग अलग अलग अपनी अपनी चीजें निकालते रहते हैं, राइट? So that is the whole point. That is the whole point, you know, of the discussion. Why we should. So इसीलिए हमारा आज का टॉपिक क्या था? Learned fools. पढ़ लिख करके हम क्या समझते हैं कि हमको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, हमको कोई क्या ही सिखाएगा ना, और सीखने लायक क्या है? That is the whole point. So आप लोगों का कोई प्रश्न? अभी मैं इसके साथ ही लेक्चर खत्म करना चाहूँगा। 5 मिनट्स एक्चुअल में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए देना चाहता था, बट ओके प्रो, क्वेश्चन। प्रभु आपने वो बोला कि मनुष्य कैसे, मतलब पहले नहीं मैंने नहीं बोला, डार्विन ने बोला था। आपका क्या मतलब क्या? अच्छा तो प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने अभी डार्विन थ्योरी बताया कि पहले मनुष्य क्या था, वानर था, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया, फिर अभी मनुष्य बन गया। तो हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कथन नहीं है। 5000 वर्ष डार्विन की जो थ्योरी है वो AC/BC वाली है ना, एडोन इन क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ऐसा वाला सिस्टम है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ग्रंथ, इसके अंदर द्वारका का वर्णन आता है, गोलोक वृंदावन का वर्णन आता है, यहाँ तक कि देवी देवताओं का, अलग अलग लोकों का वर्णन आता है, भगवान का स्वयं का वर्णन आता है। अंग्रेजी में कहावत है कि मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, जो मनुष्य है वो भगवान के जैसा ही बना हुआ है, भगवान मनुष्य जैसे नहीं बने हैं। तो हमको तो सिखाया जा रहा है, और हमको बचपन से शिक्षा भी है। मैंने कभी ये डार्विन थ्योरी पढ़ा नहीं, मेरे करिकुलम में था नहीं कभी है। दैट इज लाइक गुड थिंग। अनदर थिंग कि मेरे फ्रेंड के पास एक बुक थी डार्विन थ्योरी की, तो मेरे को इमेज ही रेडिकुलस लगी थी, मतलब बंदर इंसान कैसे बनता है। यहाँ पे तो व्यक्ति को होशियार बनने में, हमको मतलब उस समय बच्चे थे तो छोटे छोटे थे, हम बड़ों को देखते थे तो दाढ़ियाँ अच्छी लगती थी, अच्छी बॉडी अच्छी लगती थी, हम लोग एक्सरसाइज करते थे। हमारा एक्सरसाइज करके कुछ बन नहीं रहा, दाढ़ी नहीं आ रही है, बंदर कैसे इंसान बनता है, हमको ये लगता था। तो
That was the whole thing. Yes. Extension to the question. Yes, bro. वो बंदर नहीं ऐप के लिए नहीं गोरिल्ला तो वो अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो है है ना? तो बनते हुए देखा आपने? बनना चाहिए था ना? तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में बंदर नहीं थे, वो एप थे। ठीक है, तो एप अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, गोरिल्ला ना। तो मैंने तो देखा है गोरिल्ला पैदा होता है, बड़ा भी होता है और फिर शरीर भी छोड़ देता है, लेकिन इंसान नहीं बन पाता। आप में से किसी ने ऐसा कोई केस देखा हो? इस केस में प्रत्यक्ष प्रमाण पे विश्वास करना चाहिए। शास्त्रों में बोला गया शब्द प्रमाण पे, भगवान बोल रहे हैं शब्दों से कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारा अब जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो अलग है, लेकिन भौतिक जगत में मनुष्य स्पीशीज में यही मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है किसी गोरिल्ला को मनुष्य, ना डिस्कवरी वालों ने कवर किया। उन लोग ये सब में आगे रहते हैं, ऐसा कुछ होता तो डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं उन लोग, पब्लिश कर देते हैं। तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि किसी गोरिल्ला इंसान, हाँ उनके पास इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस होता है, वो पहचानते हैं लोगों को, उनका कुछ बॉडीली स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मनुष्य में और जानवरों में यही चीज है, कॉन्शियसनेस का ही अंतर है। हमारे पास हायर कॉन्शियसनेस रहती है। तो डार्विन की थ्योरी इज एक्चुअली नॉट थ्योरी, दैट इज अजम्पशन, कंसिडरिंग, मे बी, लेट अस से, ये सारे वर्ड्स जो है ना बहुत सारे यूज हुए हैं उसमें। यदि आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा उसमें ये सारे वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया हूं, लेट अस से, कंसिडरिंग दिस, लेट अस अज्यूम दिस, राइट। हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को हमको बिगिन ही अजम्पशन से स्टार्ट करना पड़ता है। लेट अस कंसिडर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज x, let us consider this as y, so x plus y plus y, 2x 2y, then we go on and solve the equation, right? a square plus b square plus 2ab, a plus b the whole square का फॉर्मूला होता है, a minus b square का फॉर्मूला minus 2ab आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम होंगी। तो बहुत सारी चीजें छोड़िए वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो हमारी मॉडर्न एजुकेशन भी अजम्पशन पे बनी हुई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या इसको कंसीडर करते हैं, इम्परफेक्ट कंसीडर करते हैं। क्योंकि इस एजुकेशन को बनाया किसने? किसी मनुष्य ने ही बनाया। वो मनुष्य क्या है? इम्परफेक्ट है। इसके लिए जो भी वो देगा वो सब इम्परफेक्ट होगा, जो भी वो दे रहा है। मनुष्य से जो भी चीज उत्पन्न हो रही है ना, सब इम्परफेक्ट है, हर एक चीज। इसीलिए आप देखें, अब आप सोचेंगे कि नहीं प्रभु मनुष्य ने तो भगवान को भी आकार दिया है, लेकिन शास्त्रों से पढ़ करके, शास्त्रों का अध्ययन कर करके, तब उन्होंने बोलते हैं ना भगवान का विग्रह ये किया है। बहुत सारी चीजें। सो डार्विन को तो उनके बहुत सारे फेलो साइंटिस्ट ने भी डिस्कार्ड किया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी सोसाइटीज है साइंस की, साइंटिस्ट की, जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को ही पूरा आउटडेटेड कर दिया। अभी पढ़ाई भी नहीं जाती कहीं पे, हमारे इंडिया में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमारा इंडिया थोड़ा स्लो है, तो समय लगेगा, कम से कम 50 साल बाद आउटडेट करेंगे इसको। और कोई प्रश्न किसी का? तो यदि कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा मांगेंगे हम लोग क्या, मैं मांगता हूँ आप लोगों से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः।